Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Surya Roshni Limited Q4 FY26 earnings conference call. This conference call may contain certain forward-looking statements about the company which are based on beliefs, opinion and expectations of the company as on date of this call. These statements are not guarantee of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all lines will be in listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touch-tone phone. I now hand the conference over to Mr. Raju Vista, Managing Director. Thank you and over to you, sir. Thank you very much and once again, good evening everyone. On behalf of Surya Roshni Limited, I once again extend a very warm welcome to everyone for joining us today evening. On this call, we were joined by Mr. B.B. Singhal, CFO and Company Secretary, Mr. Gaurav Jain, CEO, Steel Division, and Vasumitra Pandey, CEO, Lighting and Consumer Durable. Mr. Naresh Singhal has also joined us, Executive Director, Steel, and SJ, our Investor Relations and Advisor. I hope everyone had an opportunity to go through the financial results. Moving on to the overall financial performance highlight, in the Q4 FY26, our consolidated revenue stood at 2163 crore, remaining broadly stable year on year. EBITDA for the quarter stood at 170 crore with margins of 7.9%, reflecting sequential improvement driven by better realization and improved some product mix. PAT for the quarter stood at 98 crore. And for the full year FY26, consolidated revenue stood at 7,540 crore as compared to 7,436 crore in FY25, reflecting stable growth in a challenging operating environment. EBITDA for the year stood at 541 crore and PAT at rupees 286 crore. We remain a zero debt company with a net cash surplus of 340 crore as of March 31, 26. We have declared a final dividend of 2.5 rupees per share, demonstrating our ongoing commitment to delivering shareholder value. This is in addition to the interim dividend of rupees 2.5 rupees per share already distributed and dispersed. So total of 5 rupees dividend for the full year of FY26. Coming to the lighting consumer durable, the lighting and consumer durable segment delivered growth during Q4 FY26 with a revenue of 501 crore. I am particularly pleased to highlight that March 2026 was our ever highest monthly sale month across every business category in this segment, a milestone that reflects the enduring strength of the Surya brand and depth of our distribution network. EBITDA for the quarter stood at 44 crore with margins of 8.8%, broadly stable despite some input cost pressure. For FY26 as a whole, segment revenue grew by 7% year on year to rupees 1,809 crore while EBITDA at rupees 156 crore. Professional lighting business achieved double-digit revenue growth and at rupees 473 crore for the full year, being 26% share in the total revenue of lighting segment, and ended Q4 FY26 with an order book of 160 crore, providing healthy near-term execution visibility. In wire and cable, the business closed at rupees 38 crore in FY26. We are now fully end-to-end manufacturer in this category with our 180 meter
real pegs in the market, and our DBT enable electrician loyalty program fully operational. Our FY27 revenue target for the wire and cable business is 260 crore, firmly on track with the 3 years guidance of 500 to 600 crore rupees business. Overall, we are targeting value growth of 22 to 25% in lighting annually, and consumer durable segment overall over the medium term, supported by deeper distribution penetration and premiumization and continued investment in brand building. Coming to the steel pipe and strip segment, the steel pipe and strip segment deliver a resilient sequential performance during Q4 FY26 despite continued geopolitical disturbances and volatility across market. Revenue for the quarter stood at rupees 1,662 crore, even as year-on-year performance was impacted by elevated steel prices volatility and the complete absence of export on account of the Middle East current crisis. Volume for the quarter stood at 2.6 lakh tons, the ever highest quarter volume for the business so far. EBITDA for the quarter stood at 126 crore with EBITDA per ton to rupees 5,121 rupees per ton. For the full year FY26, for the steel business, the business reported revenue of 5,731 crore, reflecting stable year-on-year performance. Overall volume stood up at 9.04 lakh ton, a growth of 3% year-on-year on volume terms. The capacity utilization of 78 to 80% was maintained throughout the year, even in a challenging operating environment. And most importantly, the value-added product contributed 43% of overall volume during the year FY26. On export, our business expanded its footprint into newer geographies during the year, including the UK market for the section 5, while strengthening order visibility across North America and Europe. Export stood at 1.36 lakh ton for the FY26, and we are targeting to cross 2.5 lakh ton in the coming year FY26. The current order book of steel division is about 1,000 crore plus, led by export, spiral and some domestic API orders, providing strong visibility for H1 FY27, which is expected to be the highest ever half year for value-added product sales. Looking ahead to FY26, we are targeting overall volume of 11 lakh tons, representing growth of nearly 21 to 22% over to FY26, supported by improving utilization level, phase commissioning of new capacities, and strong contribution from value-added products. We remain confident that the current global supply chain realignment presents a structural long-term opportunity for efficient Indian manufacturers with integrated capabilities. The Surya Roshni is exceptionally doing well, and we are well positioned to capture that upside. Now I will like to request Mr. B.B. Singhal, our CFO, to share his few points. Thank you, respected MD sir, and a very good afternoon to all the participants on the call. For the quarter, the revenue was 2,163 crore as compared to 2,146 crore
a growth of 1% year-on-year basis. EBITDA and PAT stood at rupees 170 crore and rupees 98 crores respectively, as compared to rupees 211 crore and rupees 130 crores respectively. For FY26, the revenue was rupees 7,540 crore as compared to 7,436 crore, a growth of 1% Y-on-Y basis. EBITDA and PAT stood at rupees 541 crore and rupees 286 crore as compared to rupees 609 crore and rupees 347 crore respectively. In lighting and consumer durables, for the quarter, the revenue stood at rupees 501 crore as against 458 crore, a growth of 9% Y-on-Y basis. EBITDA and PBT stood at rupees 44 crore and rupees 33 crore as compared to rupees 47 crore and rupees 37 crore respectively. For FY26, the revenue stood at rupees 1,809 crore as against 1,690 crore, a growth of 7% Y-on-Y basis. EBITDA and PBT stood at rupees 156 crore and 115 crore in FY26 as compared to rupees 162 crore and rupees 125 crore respectively in the same period last year. In the steel pipes and strips, during Q4 FY26, the revenue was 1,662 crore as compared to 1,688 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 5,121 compared to 6,708 in the same period last year. EBITDA and PBT stood at rupees 126 crore and rupees 98 crore as against 164 crore and rupees 138 crore respectively. For FY26, the revenue was rupees 5,731 crore as compared to rupees 5,749 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 4,553 compared to rupees 5,392. EBITDA and PBT stood at rupees 385 crore and rupees 269 crore in FY26 as against rupees 446 crore and rupees 341 crore respectively in the same period last year. Improved capacity utilization, working capital optimization and cost rationalization enabled us to become a zero debt company and having cash surplus fund of rupees 337 crore in FY26. In Q4 FY26, our net working capital cycle was 58 days with a return on capital employed ROCE of 20.76% and a return on equity ROE of 15.23%, and on a yearly basis, net working capital cycle was 66 days with a return on capital employed ROCE of 15.93% and a return on equity ROE of 11.21%. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. First question is from the line of Aditya Pal from MSA Capital Partners. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Yes, sir. Hi, thank you so much for the opportunity. Sir, what happened this quarter? हमने बोला था कि हमारा FY26 का performance अच्छा होगा.
पिछले क्वार्टर भी हमने बोला था that Q4 will be very strong for us. We'll be doing close to 5,500 to 6,000 of EBITDA per ton in our steel business. And even when I look at volume भी 1-2% ही बढ़ा है, but then it cannot be the market as well because all our competitors have actually given a very strong Q4. मतलब it's not even when we see the difference, it's not like 2-3%. There's a humongous difference. So, and I've been asking this question again and again that is there something on the ground where you are seeing a difference, what the competitors doing that they are able to grow and we are not able to? So if you can just talk about this. I have another question I'll ask after this. या मिस्टर पॉल, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, मेनली जो हमने जैसा भी टारगेट सेट किया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो भी मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हुआ फरवरी एंड में, तो उसकी वजह से इमीडिएटली जो है हमारा एक्सपोर्ट पूरा ऑलमोस्ट नील हो गया। तो एक्सपोर्ट की अकाउंट में करीब 12,000 टन हमारा सप्लाई कम हुआ जो मटेरियल रेडी था, और इसकी वजह से जो है एक मेजर सेटबैक था। दूसरा मतलब ओवरऑल जो है जैसे ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुआ, तो जो रॉ मटेरियल की भी एक मतलब इंडिया में, हिंदुस्तान में एक क्राइसिस थी, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी। अदरवाइज आप देखेंगे थ्रू आउट द ईयर जो हमने EBITDA पूरे साल का लाइटिंग डिवीजन, स्टील डिवीजन का है, वो हमारा फर्स्ट क्वार्टर FY26 बिकॉज ऑफ ये SAP इम्प्लीमेंटेशन वो एक सेटबैक हुआ था। तो अगर उसको हम कंसिडर करें, अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर हमने मतलब अपने उसको EBITDA को, प्रॉफिटेबिलिटी को, वॉल्यूम को मेंटेन किया है। और मतलब मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि FY26 जो भी सिचुएशन रहे, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, उसको सब कंसिडर करते हुए भी अभी तक का इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे बेस्ट जो है साल जो है FY26 का सूर्य रोशनी के केस में रहेगा, 27 के केस में। और ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 महीने पूरे हो चुके हैं, तो हम लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम में भी ग्रोथ कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी अच्छे नंबर्स आने वाले समय में आपको दिखेंगे। लेकिन इसमें हम सब ने ये जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस हो सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट, वो सब चीजें भी कंसिडर करके हम चल रहे हैं। तो आप ऐसा मानिए कि इस साल जो है मतलब बम्पर वॉल्यूम के फ्रंट पे भी आपको ग्रोथ मिलेगा और उसका इम्प्रूवमेंट आपको EBITDA फ्रंट पे भी दिखेगा। सर एग्री अपने, बट अब ये सेम चीज अपने 2 क्वार्टर पहले भी बोला था और हमने मान के चला के ठीक है, राजू जी बोल रहे तो सही बोले होंगे। बट एंड ये जो आपने बोला कि 12,000 टन मिस हो गया बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस, ये 12,000 टन हम लोग Q1 में ही बुक कर लेंगे? हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इस बीच में अच्छा ये हुआ हमारे साथ कि अमेरिका का एक मार्केट खुल गया हमारे लिए, और ऑलरेडी 65,000 टन मटेरियल बुक्ड है, और इस महीने से हमारा हर महीने 10,000 टन ऑलरेडी ऐड हो गया है। तो आपने मेरे कमेंट्री में एक चीज देखा होगा, सुना होगा, पिछले साल जहां हमारा एक्सपोर्ट करीब 1.5 लाख टन था, 1.4 लाख टन था, तो हम 2.5 लाख टन से ज्यादा जो है इस साल हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल के आसपास का जो है हमारा वॉल्यूम में ग्रोथ मिलेगा। और ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो हमारे पास करीब 1,000 करोड़ के आसपास का अभी ऑर्डर बुक है, और कुछ और उसमें एक स्पाइरल भी है उसको मिला करके, और ये सारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। ऑलरेडी हम 43% जो है टोटल जो वॉल्यूम कर रहे हैं वो वैल्यू एडेड में कर रहे हैं। नहीं तो इस वॉल्यूम के साथ ये सस्टेन करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता। और जो है इसके अंदर में करीब करीब जो है 9 से 10,000 रुपए EBITDA पर टन का जो है ये पूरा जो सेगमेंट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण ओवरऑल जो है आपके EBITDA पर टन भी इम्प्रूव होगा, और इसके कारण जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, और इसके कारण ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन हमने इस बार का टारगेट थोड़ा ये सब चीजें कंसीडर करके, फिर आप नहीं तो बोलोगे राजू जी ने फिर बोला था फिर नहीं हुआ, तो वो सब चीजें हम कंसीडर करके ही मान के चल रहे हैं कि पूरे साल भर में जो है हम स्टील डिवीजन में पार्टिकुलरली 7,200 करोड़ के आसपास का हमारा रेवेन्यू रहेगा।
और जहां इस साल हमने 9 लाख टन किया था, मतलब बहुत रीजनेबल हम वॉल्यूम ग्रोथ मान करके टारगेट चल रहे हैं। करीब 11 लाख टन हम लोग जो है पाइप सेगमेंट से हम लोग पाइप बेचने का काम करेंगे। और जहां इस साल हमारा EBITDA जो है 385 करोड़ था, जो इस साल में हम लोग 470 से 480 करोड़ करेंगे और ये 500 करोड़ भी क्रॉस हो सकता है। सो रेस्ट एश्योर, जो हमने बोला है वो नंबर देखिए, मतलब अचानक कुछ हो जाता है उसकी तो कोई हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, बट फिर भी मतलब डिस्पाइट ऑल इश्यूज प्रेशर हमने कोशिश ये किया है कि हम उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस जो है करें। ठीक है राजू जी, लास्ट क्वेश्चन में यार, अभी जो हम नया डिमांड देख रहे हैं, इंडिया में भी डिमांड आ रहा है बिकॉज ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन बढ़ा है, यूएस से भी ग्रोथ आ रहा है विच यू हाईलाइटेड। आपको मिडिल ईस्ट से भी ग्रोथ दिख रहा है बिकॉज उधर भी पाइपलाइन बढ़ाने का बात चल रहा है। तो ओवरऑल आप थोड़ा डिमांड के बारे में बात कर सकते हो, एंड उस मोह में पड़ रही कैसे हम लोग कैप्चर करेंगे वो डिमांड। देखिए, इंडिया में आपकी बात सही है कि हर घर जल स्कीम हो या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओवरऑल जो है डिमांड भी बढ़ रही है। बट समहाउ मतलब पूरे साल FY26, वो FY25 में भी वो नंबर्स वगैरह दिख रहे थे। FY26 में जहाँ मतलब ये जल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, अमृत का है, हर घर जल का है, जल जीवन मिशन का है, सरकारी बजट था करीब 55,000 करोड़ का, लेकिन पैसा डिस्ट्रीब्यूट जो सरकार ने किया वो 3,000 करोड़ किया है। तो इस वजह से इसका भी इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे साल भर में पर्टिकुलरली हमारी जैसी कंपनी को था। मतलब मैं अब ये तो बिल्कुल अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, डिमांड है बट एट द सेम टाइम जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़नी पड़ेगी मतलब हिंदुस्तान के अंदर में। और बाकी जो मिडल ईस्ट को जो हमारा है वॉल्यूम समहाउ हम लोग जो है अभी तक तो मेंटेन कर रहे हैं, और जो अमेरिका का होगा उसकी वजह से एक सब्सटेंशियल जो इम्प्रूवमेंट जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में दिखेगा। ठीक है सर, ठीक है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। वापस बात होगी Q1 में जी। Thank you. Participants, you may press star and one to ask questions. Next question is from the line of Love Gupta from Counter Cyclical Investments. Please go ahead. Thank you for the opportunity, sir. So, I wanted to understand, is there any update on the demerger of the lighting and consumer durable business? And, what is the expected timeline, any progress on that front? नहीं, मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा ये जो क्राइसिस चल रहा है ये खत्म हो जाए, और मतलब होपफुली देखिए अगले बोर्ड मीटिंग तक हम लोग जो है कुछ न कुछ जो है बोर्ड से बात करके शेयर होल्डर को बोलने की पोजीशन में रहेंगे। लेकिन ओवरऑल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है इतना फ्रेंडली नहीं है, तो मतलब हर बार इस विषय में हमारी डिस्कशन जरूर होती है। तो मुझे लगता है अभी दोनों बिजनेस अपनी जगह पे अच्छा कर रहे हैं, लाइटिंग भी, स्टील भी, और कंपनी का सरप्लस है, कोई डेट नहीं है। बिजनेस में कुछ भी उतार चढ़ाव आए उसके बावजूद भी जो है मतलब हमारी पोजीशन पिछले 5-7 साल से बहुत अच्छी ही रही है। और हमने भी थोड़ा ये मेंटेन किया है कि थोड़ा क्वालिटी बिजनेस हो, थोड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, वैल्यू एडेड हो, थोड़ा हाई मार्जिन वाले हो, वो सब भी मेंटेन किया हुआ है। तो मतलब ओवरऑल परसेंटेज भी आप देखेंगे, पीयर से भी कंपेयर करेंगे, स्टील पाइप की बिजनेस होने के बावजूद भी जो है EBITDA परसेंटेज जो है बहुत अच्छी है मुझे लगता है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ हमारा बैंक का साथ जो संबंध था वो तो खत्म हो गया, अब हमारी रिलेशन जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर के साथ ही है। सो अभी भी हम ये इंश्योर करते हैं कि जो कॉर्पोरेट एक्शंस होंगे वो तो अपनी जगह होंगे, लेकिन आज भी हमने ये ध्यान रखा है कि टोटल प्रॉफिटेबिलिटी का जो है 1/3 वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में मिले, और उसका 1/3 जो है मतलब बिजनेस जो ग्रोथ के अंदर में लगे, और बाकी 1/3 जो है हमारी जो भी कैपेक्स वगैरह है
उसमें लगे। सो 1/3 कैपेक्स में, 1/3 जो है हमारी वर्किंग कैपिटल में ग्रोथ में और 1/3 शेयर होल्डर को मिले। ये हम पिछले 2-3 साल से मेंटेन कर ही रहे हैं। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी हमारे पास 340 करोड़ नेट कैश सरप्लस है एंड हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन भी क्वाइट रीजनेबल अभी, तो कुछ बायबैक का कुछ प्लान है, कुछ पॉसिबिलिटी है बायबैक का? नहीं, वो पीछे हमने कुछ उसमें सोचा था, लेकिन वो थोड़ा गवर्नमेंट की वो फेवरेबल नहीं थे, तो इस बार अभी फिर शुरू किया है। हाँ, तो री इंट्रोड्यूस किया है। सो विल कम टू यू वेरी सुन। ओके सर, थैंक यू। Thank you. Participants, you may press star and 1 to ask questions. Participants, you may press star and 1 to ask questions. Next question is from the line of Viraj Mehta from Enigma Investment Partners LLP. Please go ahead. Yeah, hi sir. Sir, hello sir. Sir, अपन ने जो Q3 के बाद फरवरी की कॉल में बोला था वॉल्यूम का, we were not able to achieve that also, and this is for like third quarter in a row कि कुछ न कुछ आपत्ति आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग लिटिल बिट कि हम जो बोलते हैं वो कंटिन्यूसली, मतलब समझ रहा हूँ कि एक आध क्वार्टर नहीं होता है, बट हर क्वार्टर नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है एज अ शेयर होल्डर। इट्स जस्ट अ फीडबैक टू यू सर। सेकंड, आपने बोला कि हम 11 लाख टन करेंगे, तो उसमें सर 2 प्रश्न है। एक, अगर आप 1 लाख टन, 1,10,000 टन इंक्रीमेंटल अगर एक्सपोर्ट से कर रहे हैं, तो क्या हम डोमेस्टिक से इंक्रीमेंटल खाली 70,000-80,000 टन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये बहुत कम नहीं है हमारी एस्पिरेशन एज फार एज ग्रोथ इन डोमेस्टिक मार्केट इज कंसर्न्ड? विराज भाई, एक तो हमने लास्ट टाइम ये बात हुई थी 2.9 लाख टन के आसपास करेंगे, तो 2.6 टन हुआ है Q4 के अंदर में। मेनली 10-12 हजार टन एक्सपोर्ट का नहीं हुआ, और उतनी क्वांटिटी जो है डोमेस्टिक में स्टील की मतलब अवेलेबिलिटी का इश्यूज आ गया था, तो मेनली इस वजह से वॉल्यूम नहीं कर पाए। बट उसकी भरपाई हम इस क्वार्टर में कर रहे हैं, और जो है हमारा करीब Q1 के अंदर अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। मतलब लगभग जो है 2,65,000 टन का हमारा जो है Q1 में ही वॉल्यूम होगा, और करीब 27-28% के आसपास की हम लोग ग्रोथ करेंगे। दूसरा आप क्या पूछ रहे थे? थोड़ा डिस्टर्बेंस था लाइन में। सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप 9.2 लाख से 11 लाख टन जाने की बात कर रहे हैं इस साल, जबकि आपका इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट से ही 1.1 लाख टन आ रहा है ग्रोथ वॉल्यूम का, तो क्या आप डोमेस्टिक मार्केट से खाली 70,000 टन इंक्रीमेंटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन नहीं है? ये काफी कम महत्वाकांक्षा नहीं है ग्रोथ की? विराज भाई, मैं 12 लाख बोल दूंगा, फिर आप पूछोगे आपने 12 कहा था कि 11.25 रही, तो अच्छा है ना मैं कम बोलूं ज्यादा करूं, तो इतना तो मैंने ये 3 क्वार्टर में सीख लिया। दूसरा विषय ये है विराज भाई कि ये जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है ना ऑयल एंड गैस में मेनली, तो ये हम चल के चल रहे हैं। इस साल भी थोड़ा सा जो है मतलब कम ही रहेगा स्पेंडिंग, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर बिल्टअप हुआ है, मतलब गैस फ्यूल ये सब ओवरऑल जिस तरह का एनवायरमेंट बना हुआ है, मुझे लगता है हो सकता है गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ डिले डाल दे और कुछ होल्ड पे डाल दे। तो ये सब चीजें कंसीडर करके हम मान करके मतलब चल रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कुछ आएगा, इसीलिए हम बहुत ये सब चीजों को कंसीडर करके मिनिमम साइड पे ही अपनी जो है वॉल्यूम और टारगेट रख करके चल रहे हैं। बट आप रेस्ट एश्योर, हम लोग कोशिश करेंगे, जैसा आपने कहा कि अगर 1-1.25 लाख टन एक्सपोर्ट से ही बढ़ रहा है, तो उससे ज्यादा तो जो है मतलब एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में बाकी तो जो है फिर तो 13-13.5 लाख होना चाहिए आपके हिसाब से। तो बट फिर भी हम कोशिश करेंगे 11 लाख टन मतलब लेसर साइड में हम लोग, हो सकता है इससे भी वॉल्यूम अच्छा करें, क्योंकि 2,60,000 टन 65,000 टन तो हम लोग Q1 में ही अचीव कर रहे हैं। ओके सर। और सर, आपने एक बात बोली कि आप अपन 500 करोड़, 450 से 500 करोड़ EBITDA करेंगे
इस साल स्टील डिवीजन में। पर सर अगर मैं 11 लाख टन गिनूं तो 500 करोड़ पे तो अपना एबिटा होता है 4600 या 4700। मतलब आप क्या बोल, एंड दैट इज इंस्पाइट ऑफ हायर एक्सपोर्ट जो ज्यादा मार्जिन बिजनेस है, एपीआई जो ज्यादा मार्जिन बिजनेस है। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। अब अपना तो एबिटा पर टन जो 50। नहीं, हाँ इसमें भी वही चीज है, इसमें भी तो वही चीज है। हम ये मान के चल रहे हैं ऑयल एंड गैस में थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट और इन सब के अंदर में बहुत सब्सटेंशियली ज्यादा मार्जिन्स वाला जो है बिजनेस है डोमेस्टिक का, तो ये हम मान के चल रहे हैं उसमें थोड़ा प्रेशर रहेगा। और इसलिए मतलब हम ये मान के चलते हैं कि मतलब 4700 के आसपास पूरे साल भर का जो है पर टन एबिटा रहेगा। इसीलिए हम 480 470 के आसपास का स्टील डिवीजन में करेंगे और 200 करोड़ के आसपास का जो है लाइटिंग डिवीजन में एबिटा रहेगा। तो हमारा ये है कि दोनों मिलाकर के 680 से 700 करोड़ का मतलब पूरे साल भर का एबिटा हो। तो सर ये तो सब्सटैंशियल डिक्रीज है इन एबिटा पर टन, बिकॉज दिस ईयर ऑल्सो फॉर द फुल ईयर वी हैव डन हायर देन दैट। इनफैक्ट Q1 में Q4 में तो हमने 5100 किया है। तो आप बोल रहे हो वहां से भी काफी गिर जाएगा एबिटा पर टन। पर सर बाकी कोई स्टील प्रोड्यूसर या पाइप प्रोड्यूसर ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। मैं मतलब आपकी कमेंट्री डिफरेंट है उस तरीके से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो बात। आप हरिओम, एपीएल, अपोलो किसी से भी बात कर लीजिए, कोई एबिटा पर टन 400 रुपए गिरने की बात तो कर ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसा है कि एक बार पहली बात तो फुल ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो कम नहीं है, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही है फुल ईयर का, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, मतलब इनपुट कॉस्ट सब जगह बढ़ी है, ठीक है, और जो ग्रेच्युटी और बाकी जो नया लेबर लो है उसका भी करीब 30-40 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट है हर एक कंपनी को, सिर्फ सूर्य रोशनी को नहीं है। और फ्यूल और पावर की कॉस्ट बढ़ी है, उसका भी एक इम्पैक्ट है हर एक कंपनियों को। तो ये सब चीजें भी कंसीडर करके मतलब नंबर्स हमने जो आपको बताए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई थंब रूल कैलकुलेशन में कोई चीज हमको आई और आपको बता दिया। तो ये सब चीजों कंसीडर करके ऑन ए लेसर साइड हम मिनिमम हमारा कमिटमेंट ये है कि 680 से 700 करोड़ के आसपास का एबिटा पूरे साल का हम करेंगे। और पूरे साल के केस में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट ही है। आप Q4 को और Q1 को कंपेयर मत करिए पूरे ईयर को, क्योंकि जनरली Q4 जो होता है दोनों बिजनेस के अंदर में सबसे हाईएस्ट जो है एबिटा वाला जो है क्वार्टर रहता है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस में भी द फेस्टिवल और क्लोजिंग ईयर क्वार्टर होने की वजह से। राइट मैं इतना विराज जी कहना चाहूंगा कि सूर्य रोशनी के इतिहास में FY26 का साल अब तक के मतलब 50 साल की जर्नी में सबसे बेस्ट साल रहेगा। यू मीन FY27, राइट? FY27। सो सर लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला कि Q1 में अपन 2.65 लाख टन तो पक्का करेंगे। तो अगर मैं 4800 भी गिनता हूँ तो अपन कम से कम 125 करोड़ एबिटा स्टील से करेंगे इस क्वार्टर। हाँ, 120-125 करोड़ का करेंगे। और मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट जो है 100% की ग्रोथ रहेगी। पर सर लास्ट ईयर तो वो एसएसबी के कारण अपना पूरा एक महीना ही खराब हो गया, तो वो तो फेयर कंपैरिजन ही नहीं है मेरे अपने हिसाब से। चलो तो इस साल के नंबर से खुश हो जाओ। थैंक यू सर। Thank you. Next question is from the line of Pratik Singhania from Sage One Investments. Please go ahead. सर हाय सर। सर यहाँ पे अगर हम लोग पिछले 5 साल का हमारा हिस्ट्री देखें तो पूरे 5 साल का क्यूमुलेटिव ग्रोथ, मैं ईयर ऑन ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूमुलेटिव ग्रोथ हमारे स्टील सेगमेंट में करीबन 25% रहा है 4 साल में, जो मतलब करीबन हर साल 6-6.5% का वॉल्यूम ग्रोथ हो गया। तो सर अपने इंडिया इतना अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, बाकी के सारे कॉम्पिटिटर्स कंपनीज इतनी अच्छी तरह ग्रो कर रही है, हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ में हो रहा है जो हम सिर्फ 6% के CAGR पे ग्रो कर पा रहे हैं पिछले 4 साल में।
नहीं, इसका क्या क्या है मेनली देखिए, मतलब कोविड के समय और उसके बाद जो है, मतलब 2-1 साल हमने कोई मेजर कुछ भी हमने कैपेक्स किया नहीं था। पिछले 1.5 साल से ही अभी हम ये कर रहे हैं, 2 साल से। तो एक तो वो था, और दूसरा थोड़ा सा हमने अपने काफी सेगमेंट वगैरह जो नॉन प्रॉफिटेबल वाले सेगमेंट थे, उसमें हमारा ज्यादा फोकस नहीं था। हमारा फोकस ज्यादा उसमें था कि हाई मार्जिन वाले और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर में हमारा फोकस हो। तो वो सब किया, और मतलब इस साल जो अभी जो ऑलरेडी कैपेक्स हो गए, या इस साल जो पाइपलाइन में ऑनगोइंग कैपेक्स है, उस सबको कंसिडर करके जो है हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो सब्सटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ इस साल से देखने को मिलेगा। अब बाकी आपकी बात ठीक है कि एज कम्पेयर टू ओवरऑल जो डबल डिजिट की ग्रोथ थी इंडस्ट्री की, तो उसके मुकाबले जो है हमारी ग्रोथ कम रही। लेकिन इन द मीन टाइम ये 5 साल में हमारा शुरू में स्ट्रेटेजी ये भी था कि कंपनी को हम डेट फ्री करें, तो वो करने में भी जो है सक्सेसफुली हम लोग कर पाए हैं। सर बट आप जब बोलते हैं कि हम हाई वैल्यू मार्जिन वाले प्रोडक्ट में हम फोकस कर रहे थे, बट अगर मैं डेटा देखूं आपके प्रेजेंटेशन में, तो आपका FY21 का जो डेटा था, FY21 से 26 का डेटा देखता हूँ, और एपीआई एंड स्पाइरल पाइप्स का डिवीजन देखता हूँ, तो ये FY26 में तो सबसे वीकेस्ट एबिटा पर टन हमने किया है। मतलब हम पहले FY21 में 7.5 किए, फिर FY22 में 9 था, 9,000 रुपया टन था, फिर FY23 में 12,000, फिर FY24 में 10,500, 25 में 9,300, फिर FY26 में 5,600। तो सर हमारा तो ये वैल्यू एडेड जो सेगमेंट है, जो आइडियली ग्रो ही होना चाहिए एबिटा पर टन, ये तो हमारा FY23 से एकदम नीचे ही आते जा रहा है हर साल, और अभी तो ये बहुत ही नीचे आ गया 5,600 रुपया। नहीं, आपका ठीक है। एपीआई स्पाइरल का क्वार्टर एबिटा देखेंगे तो मतलब जीआई पाइप से भी कम हुआ है। मैं ईयरली बोल रहा हूँ सर, ईयरली नंबर बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जहाँ पहले ऑलमोस्ट डबल होता था, वो आधा रह गया है। देखिए, एक रीजन तो बड़ा ये है क्योंकि ये टेंडरिंग बिजनेस होता है, वो हमारे कंट्रोल में तो होता नहीं है, और इसमें थोड़ा कंपटीशन भी, मतलब पिछले सालों के अंदर में कंपटीशन भी बढ़ा है, और ऊपर से जो है थोड़ा वॉल्यूम में भी इसके अंदर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग का प्रेशर है, इस वजह से भी है। तो इसको मतलब कवर करने, मतलब आप देखिए, इतना सब्सटेंशियल जो है, मतलब कम होने की बावजूद भी हम समहाउ मेंटेन इसलिए कर पाए हैं कि ओवरऑल जो वैल्यू एडेड का कंट्रीब्यूशन था वॉल्यूम में, वो बढ़ा है। और जैसा मैंने अभी बताया, जो अमेरिका का एक्सपोर्ट का मार्केट है, उसकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट जो है आने वाले साल में उसकी वजह से देखने को मिलेगा। ये मतलब एपीआई से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वहां से होगी। कहाँ से होगी सर एपीआई की भरपाई? जो एक्सपोर्ट का बताया ना मैंने, नॉर्थ अमेरिका का, जो ऑलरेडी हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो ये ऑर्डर बुक ऑफ ऑलमोस्ट 65,000 टन, और मुझे लगता है साल भर में जो है मतलब 1,20,000 टन के आसपास जो है नॉर्थ अमेरिका, ये नया मार्केट है ऑल टुगेदर हमारे लिए, जो इस साल से खुला है। और उसमें एबिटा पर टन भी 10,000 के 9,000 से ऊपर 10,000 के आसपास ही है। तो सर हमारा डोमेस्टिक में जितना भी हमारा वॉल्यूम सेल्स है, उसमें से कितना हमारा वॉल्यूम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे डिपेंडेंट है, या कितना बिजनेस हमारा गवर्नमेंट को दे के, या गवर्नमेंट को जिसने गवर्नमेंट, जो कंपनी ने गवर्नमेंट से ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो कंस्ट्रक्शन कर रही है, गवर्नमेंट रिलेटेड स्पेंडिंग में कितना हमारा वॉल्यूम जाता है? मतलब टोटल स्टील पाइप का सेगमेंट है, उसमें करीब 15 to 16% है। नहीं सर, मैं आपकी कंपनी का बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारी कंपनी का मैं बोल रहा हूँ। ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्ट सेगमेंट है, उसके अंदर में जो गवर्नमेंट का मतलब या एपीआई का या जो है टेंडर बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 15-16% के आसपास रहता है। तो 15-16% अगर इतना कम है तो आप नहीं, आई जस्ट हैव टू कंक्लूड अ पॉइंट, आई जस्ट नीड टू कंक्लूड अ पॉइंट। सर 15-16% अगर इतना कम है ना सर, तो आप इस चीज को बार बार की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम है, उसके वजह से वॉल्यूम ग्रोथ कम आएगा ना, तो सर वो रीजन मेरे को जस्टिफाइड नहीं लगता। मुझे लगता है आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस रखना चाहिए कि क्यों, क्या चीज की वजह से हम इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हो, बाकी के लोग ग्रो कर पा रहे हैं,
FY26 में भी, और हमारी गाइडेंस आप एक्सेप्टेंस रखोगे तो सर आप फ्यूचर में उसके हिसाब से काम कर पाओगे। ये मेरा मानना है सर। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। ये जो गवर्नमेंट API जो हाई मार्जिन वाला बोल रहे थे उसका कंट्रीब्यूशन 15-16% है। अदरवाइज वाटर पाइप एंड स्पाइरल उसको आप जोड़ दोगे तो ये 28-30% के आसपास हो जाता है। ठीक है सर, आई विल कम बैक इन द क्यू सर। Thank you. Participants, please limit your question to only 2 questions per participant. Should you have a follow-up question, we request you to rejoin the queue. Next question is from the line of Kiran from Table Tree Capital. Please go ahead. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ONGC या सारे अदर ऑयल कंपनीज का जो हमारा अपॉर्चुनिटी था इन टर्म्स ऑफ seamless to ERW, right? It's supposed to be a large opportunity. Q3 में हमने 4,500 tons किए हैं. There is just too much focus on oil and oil pipes and I don't know, exploration because of higher oil prices. तो ये जो seamless to ERW even without any new capex होने वाला है, which is a very large opportunity and there is just tremendous value for us. कुछ ट्रैक्शन हो रहा है सर ये FY27 में? विल वी बी एबल टू गेन सब्सटेंशियल वॉल्यूम्स? इज दैट लो प्राइसिंग और हाई प्राइसिंग? इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो आपने ONGC का बात किया, बेसिकली क्या है, सीमलेस के कंपैरिजन में जो है, जो मतलब वेल्डेड पाइप है, और इसमें ऑलरेडी हम लोग भी 5,000 टन जो है सप्लाई कर चुके हैं। और इसमें थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए अपग्रेडेबल 5CT में हम लोग जो है ऑलरेडी R&D में काम चल रहा है, लेकिन इसका मेजर इम्पैक्ट जो है FY28 में जाकर के आएगा। इसमें थोड़ा टाइम और लग रहा है। Got it, sir. Got it. So the 11 lakh tons doesn't include any volumes from this opportunity. नहीं, इसमें नहीं, उसको कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि जो हमने कैपेक्स किया है उसका टाइम ऑलमोस्ट 9-10 महीना है, तो उसका इम्पैक्ट जो है FY28 में आकर के आएगा। अच्छा, समझ गया। Sir, the second question is from a growth perspective. If I see the EBITDA, and I'm sure the feedback from all the other previous participants are also well taken. In terms of EBITDA, हमारा we have stagnated for 4-5 years now, sir, right? So 442 हमने March 22 में किया, steel prices गिर गए, बढ़ रहे हैं, तो we are now again at 540 crore. तो हम लोग बोल रहे हैं 540 crore से 700 crore जंप करने वाले हैं FY27 में. So hope that happens, sir. And how much confidence you have that we'll jump to 700 crore? इसमें risk क्या है? That is question number 1. Question number 2, हम लोग सुन रहे हैं कि getting steel from steel companies these days has become very difficult across the industry because there's just too much steel demand or steel prices are very high and so on and so forth. So हमारा, because we are one of the largest buyers of HR coil, इसमें हमारा impact भी है क्या Q1 Q2 में in terms of steel buying? So ये 2 question है sir. एक तो EBITDA stagnation to 700 crore, what are the risks and how confident you are? Point number 2, steel buying, is there any constraint in the market? Because multiple industrial companies are talking about this constraint that they're not getting steel as much as they require. देखिए, 2 बात। एक तो जहां तक रिस्क की बात है, जो नंबर्स हमने अभी आपको बताए हैं उसमें बहुत ये सारी चीजें जो रिस्क फैक्टर है उसको कंसीडर करके ही ये नंबर बता रहे हैं। और मतलब इस साल जैसे FY27 जो है स्टील और लाइटिंग डिवीजन दोनों मिला के 680-700 करोड़ के आसपास का EBITDA रहेगा, जो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट बैलेंस शीट के अंदर में देखने को मिलेगा। इसमें जितने भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं सारे कंसीडर है। इससे बियॉन्ड होता है तो मतलब वो एक बोनस होगा, और जिसके चांसेस लाइकली ज्यादा ही है। नंबर 2, जहां तक स्टील की अवेलेबिलिटी का ये इश्यूज था, ये टाइमिंग है पिछले 3-4 महीने में उसका इम्पैक्ट था, मेनली बिकॉज स्टील के अंदर में बहुत लंबे समय के बाद सब्सटेंशियल जो है उसमें तेजी आई थी, और उसकी वजह से डिमांड जो है ओवरऑल सब तरफ बढ़ गई थी।
और दूसरा ये जो फिर एट द सेम टाइम ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस हुआ उसकी वजह से थोड़ा गैस की अवेलेबिलिटी का भी इश्यूज था और बहुत सारे प्लांट गैस बेस है तो उसकी वजह से जो है कोई एक बड़ा प्लांट भी थोड़ा उसको डिफिकल्ट आती है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट में आता है। सो अभी ये जो है ऑलमोस्ट मतलब पिछले महीने भर से ये सॉर्ट आउट है और मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में इसका कोई क्राइसिस आएगी, ये टाइमिंग था। और दूसरा ओवरऑल इंडिया के अंदर में अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील HR कोल सालाना बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इसके अंदर में काफी कैपेक्स और काफी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रही है जो पाइपलाइन में भी है, जो हर साल कुछ न कुछ क्वांटिटी मिलियंस के अंदर में बढ़ोतरी भी हो रही है। Got it. Thank you so much. John back at the queue. Thank you. Participants, please limit your question to only 2 questions per participant. Should have a follow-up question, we request you to rejoin the queue. Next question is from the line of Saket Kapoor from Kapoor & Co. Please go ahead. या नमस्कार राजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। जी सर, जी साहब, अभी सर जो वार्तालाप चल रहा है उसमें अगर हम संक्षेप में ये समझना चाहें तो आपने ये उल्लेख किया है कि करंट वित्त वर्ष के लिए हम 680 से 700 करोड़ का कंबाइंड एबिटा एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें आप 11 लाख की वॉल्यूम का रुझान दे रहे हैं पाइप्स के लिए, हमारे स्टील पाइप्स के लिए, और उसमें भी आप एबिटा एक्सपेक्ट करते हैं 470 से 480 करोड़ का। ये नंबर सब सही है सर? राइट जी। अच्छा सर, तो मैंने 200 करोड़ की रिमेनिंग जो एबिटा का नंबर रहेगा वो हमारा लाइटिंग सेगमेंट से आएगा। मैं एक बार मतलब इस साल का प्रोजेक्शन थोड़ा फिर आपको बता देता हूँ। ओवरऑल जो है लाइटिंग और स्टील के अंदर में रेवेन्यू में करीब 7200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहेगा स्टील डिवीजन से, और लाइटिंग डिवीजन से करीब 2200 करोड़ की रहेगी। तो 9400 करोड़ से 9500 करोड़ का ओवरऑल जो है हमारा रेवेन्यू रहेगा इस साल में। और कंपनी एज ए होल करीब 24% से 25% की ग्रोथ करेंगे हम लोग। और इसी तरह से एबिटा के अंदर में करीब स्टील डिवीजन में 480 करोड़ रुपए, लाइटिंग में करीब 200 करोड़ रुपए, मतलब ये 680 करोड़ के आसपास का रहेगा। इसमें भी जो है 25% की 26% की ग्रोथ रहेगी। तो ये है। और ये इनमें हमने कुछ चीजें ऑलरेडी जो है वो कंसीडर किया है, क्योंकि हमने देखा कुछ गैस की, कुछ जो नया लेबर लॉ आया है उसकी वजह से 40-50 करोड़ का इम्पैक्ट हर कंपनी को आया है, तो उसको कंसीडर करके नंबर बता रहे हैं, नहीं तो ये नंबर हम लोग 750 भी कर लेंगे। अब सर एबिटा पर टन के जो विषय में आपने 2 डाटा पॉइंट दिए। पहला डाटा पॉइंट आपने ये बताया कि हमारे पास हाई वैल्यू प्रोडक्ट के सब्सटेंशियल ऑर्डर हैं जिनमें हमारा पर टन एबिटा सिग्निफिकेंटली हायर रहेगा, बट आप ओवरऑल में पर टन एबिटा को 4700 रुपए पर टन पे बता रहे हैं। तो ये नंबर को हम समझ नहीं पा रहे हैं सर। मैंने आप एग्जैक्टली वैल्यू एडेड में हायर 9000 समथिंग आपने शायद कोई नंबर शेयर किया था, तो अगर आप समझा दें कि और ये क्यों लोअर है सर। अगर हम लोग पिछले क्वार्टर का भी नंबर देखें या पिछले वित्त वर्ष का भी नंबर देखें तो उससे भी एबिटा पर टन स्टील पाइप्स के लिए लोअर साइड पे ट्रेंड कर रहा है, तो इसका कारण अगर आप बताते सर। इसमें देखिए मेनली क्या हो रहा है कि मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है बिजनेस 20% के आसपास है, उसमें तो हम लोग सब्सटेंशियल जो है एबिटा में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बाकी जो बिजनेस के अंदर में हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा टफ मार्केट के अंदर में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो दोनों को चीजों को कंसीडर करके हम ऐसा मान के चलते हैं पूरे साल भर में 4700 करोड़ रुपया 4700 रुपीज पर टन के आसपास का इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि मतलब इतना इजी भी नहीं है FY27 सभी इंडस्ट्री के लिए। जो क्राइसिस है वो है जो लेबर की वजह से, फ्यूल की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो बढ़े हैं, कॉस्ट बढ़ी है। लाइटिंग डिवीजन के अंदर में अभी तक हमने बात नहीं किया, करीब करीब जो हमारा इनपुट रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड आता था उसमें इम्पैक्ट 30 से 35% का है। वो तो अच्छा है, समहाउ जो है मार्केट में पास ऑन हो गया, बट पास ऑन होने में भी 1-2 महीने का उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में आता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो बहुत इस 3 महीने के अंदर में बहुत कुछ इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में उसका इम्पैक्ट
हुआ भी है। जी सर, ठीक है सर, मैं दोबारा कतार में आता हूँ। Thank you. Next question is from the line of Yogesh from Magnus. Please go ahead. Hello. Thank you so much for taking my question, sir. सर इससे आपने मेंशन किया था प्रीवियस पार्टिसिपेंट में को कि हमने बहुत सारी कैपेसिटी एडिशन करी है ओवर द लास्ट 1.5 years, एंड उसके पहले हमारा इतना फोकस नहीं था कैपेसिटी एडिशन में, एंड हमारा ज्यादा फोकस था ऑन कैश जनरेशन एंड बीइंग डेट फ्री। सो इफ यू कैन एलैबोरेट कि अभी नेक्स्ट 1 से 2 साल में हम क्या वापस से वो कैपेसिटी एडिशन के साइकिल में एंटर हो रहे हैं, जहाँ पे हम थोड़ा, गिवन दैट हमारे पास कैश भी बहुत ज्यादा अभी सही कैश फ्लो है और बैलेंस शीट पोजीशन काफी स्ट्रांग है, तो क्या हम नेक्स्ट 2 साल में मैसिव कैपेसिटी एडिशन देख सकते हैं फ्रॉम द बिजनेस? एंड ओवर द लास्ट 2 years क्या कितना कैपेसिटी एडिशन हुआ है? अब ये भी डिटेल्स अगर थोड़ा शेयर कर सकते तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट 1.5 साल में करीब हमारा 2 लाख टन की कैपेसिटी इंप्रूव हुई है, और अगले 1 साल के अंदर में करीब हम 1.6 मिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे 1.4 से, और उसके बाद जो है हमारी कैपेसिटी करीब 3 लाख टन से बढ़ेगी, तो मतलब FY 28-29 के अंदर में हमारी कैपेसिटी 1.9 मिलियन के आसपास हो जाएगी। तो अभी 1.2 है हमारा कैपेसिटी एंड वो 1.9 हो जाएगा 2 साल के अंदर अंदर। मतलब 4 मिलियन पे पहुंच चुके हैं। 1.2 था, 1.2 समथिंग था, अभी 1.4 समथिंग ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी इनहांस हो चुकी है, जो अगले 1 साल के अंदर में FY 26 के अंदर में ही 1.6 मिलियन टन के आसपास हो जाएगा। ओके, तो 1.2 से 1.6 हो जाएगा जी, राइट? हाँ, ओके। एंड ओके, थैंक यू, दैट वाज माय क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, we'll take that as our last question for today. I now hand the conference over to Mr. B.B. Singhal for his closing comments. Thank you and over to you. Thank you for joining us today on this earnings call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thank our MD sir and the CEOs for sparing their valuable time and addressing queries raised by participants who attended the call. For any further queries, if any, you can contact SGA, our investor relation advisor. Thank you. Good evening once again. MD को थैंक यू मत करो, वो बोल रहे हैं प्रॉफिट बढ़ाओ। शेयर होल्डर को थैंक यू बोल रहे हैं। MD sir को Thank you. On behalf of Surya Lakshmi Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.